Which metal is commonly anodized? Right answer aluminum. Second question. In the process of binary fission by unicellular organisms such as bacteria and protozoa, which following least like to occur? Right answer unequal partition of genetic material. अनइक्वल पार्टीशन का मतलब क्या होता है? मतलब वो जो इक्वली ऑफ डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, वो तो डिवाइड इसी को बोला जाता है, ठीक है। थ्री क्वेश्चन. फॉर फर्टिलाइजेशन द pollen grain most reach which suitable part of flower? Right answer stigma. Which following describe the nature of average speed? Right answer C. It is scalar quantity, only magnitude. छोटा कर लेता हूँ, आपको कट हो जाएगा. 5 क्वेश्चन. A train traveling at a speed of 180 km per hour. Brakes are applied to produce a uniform acceleration of -1 meter second square. What distance will the train cover before coming to rest? देखिए यहीं पे इतना गिवन है ना, ब्रेक ऑन के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना. इनिशियली कितना है 180, इसी को आप 5/18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन वो मतलब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ना. कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड में आ गया. देखिए एक्सेलरेशन -1, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा ना, क्योंकि वो ब्रेक क्या ना मतलब स्टॉप हो जाएगा ना. v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ac का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. फिर यहीं पे 0 50 स्क्वायर प्लस 2 -1 यस, यहीं पे s का वैल्यू मिल जाएगा ना आपको. यहीं पे -2s मतलब 2s इक्वल टू 2500, s इक्वल टू 1250 हो जाएगा ना. राइट आंसर. Which of following phenomenon is responsible for blue color of clear sky? Right answer रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना. स्कैटरिंग होगा ना, स्कैटरिंग होगा सॉरी. 7 क्वेश्चन. Which following statement is correct? Right answer C. Work require both force and displacement. 8 question. The heat produced in a conductor due to the flow of current does not depend on direction of current. Heat produced in conductor due to the flow of current does not depend on direction of current. ठीक है. 9. The filament of electric bulb is made tungsten because heat is high resistance and can withstand high temperature. 10 question. Which activity show that particles of matter are continuously moving? Right answer which activity show the particle matter continuously moving? वो क्या है? Fragrance of perfumes spreading in room. अच्छा. मतलब जो रूम में आप परफ्यूम स्प्रे करते हो ना, इसलिए वो वाला बोला जा रहा है. ठीक है. इलेवन क्वेश्चन. व्हिच फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच इन डिवाइस विथ मेन यूज? हॉर्न एम्पलीफाइंग म्यूजिकल साउंड्स. 12 क्वेश्चन. Which statement accurately describe the characteristic of protein in atom? Right answer, they are located in the nucleus. Which part of brain control involuntary actions such as blood pressure, salivary and vomiting? Right answer, medulla oblongata.
Which of following reaction correctly represent synthesis of bleaching powder? CaOH2 plus Cl2 CaOCl2 plus H2O. 15. The hydrophilic end of soap molecule is ionic and interact with water. 16. Predict the element corresponding to following number प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन. राइट आंसर डी बन जाएगा, कैल्शियम एंड पोटासियम. 17. Which following statement about physical property of non-metal is correct? Right answer. Non-metal are generally brittle in solid state. 18. Which following substance is inert in nature, present in environmental for long time and harm ecosystem components? Right answer. Disposable plastic cup. 19. An object placed between f and 2f convex lens from its image. Right answer. Beyond 2f real, inverted and enlarged. देखिए यहीं पे मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है. आपको वो वाला थियोरी वाला पार्ट आपको वहीं पे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, तो आपको पढ़ने के बाद जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, डिफ़िकल्टी आ रहा है, मैं इसी को सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूँ, ठीक है. यहीं पे ज़्यादा मतलब रीजनिंग मैथ्स यहीं पे आप क्लियरफाई हो सकते हो. वो वाला थियोरी पार्ट यहीं पे भी जो प्रॉब्लम का फिजिक्स का प्रॉब्लम है, वो क्या केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, वो चीज़ और कोई एक स्टेटमेंट डिफ़िकल्टी है. देखिए हमको भी डिफ़िकल्टी होता है कभी कभी. एक मतलब ये जो परफ्यूम वाला मतलब यहीं पे पढ़ने के लिए दिक्कत हुआ था. यहीं पे थोड़ा क्या होता है ना, मतलब आप जूम करने के बाद यहीं पे मेरा को सही से दिख रहा है, ठीक है. मतलब आप मैं जूम करके पढ़ाऊँगी तो आपको कट हो जाएगा, ठीक है. मतलब जो यहीं पे एक लॉन्ग फॉर्मेट में कोई एक मतलब आ जाता है वर्ड, इसी को पढ़ने के लिए दिक्कत होता है ना. आप इसी को थोड़ा साथ दीजिए टाइम के साथ, वो भी अपडेट हो जाएगा. हमारे पास इतना अपडेटिंग डिवाइस भी नहीं है अभी, ठीक है. देखिए 20 क्वेश्चन. Which following statement is true about villi in small intestine? Right answer B. Only statement A, B, D. Which following statement. अच्छा यहीं पे क्वेश्चन यहीं पे गायब हो गया ना, छोड़ दीजिए इसी को. 21. Which following is heterogeneous mixture? Right answer D. Soil. Asexual reproduction has difference from sexual reproduction. Which following does not represent asexual reproduction? Right answer. Involvement of both male and female productive parts. 23. A person weight 600 Newton stand 2 feet having total contact area 0.05 meter square. Find pressure exerted on sand. देखिए आपको पता है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है ना. सिर्फ आपको पुट करना है यहाँ पे 6/0.05. Which following simple permanent tissue have lignified cell wall? Right answer sclerenchyma. मतलब वो जो लिग्निफाइड सेल मतलब वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है. मतलब मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है. इस तरह. Which gland is human body secret growth of hormone? Right answer pituitary gland. देखिए अभी मैथ करेंगे. पहला मैथ क्वेश्चन. A person spend 14,000 in grocery, 8,000 in rent, 1,000 in school fee and save 20% of total income. Find total income. देखिए यहीं पे पहले ऐड कर लीजिए, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 14,000 प्लस 8,000 प्लस 10,32,000 टोटल इतना हो गया. देखिए मतलब इतना सेव 20% ऑफ द टोटल इनकम एंड सेव 20% ऑफ द टोटल इनकम. फाइंड
टोटल इनकम, लेट टोटल इनकम एक्स मान लीजिए, ठीक है। पोर्शन स्पेंड मतलब वो 80%, उनका 80% इतना होगा ना, देखिए मतलब इतना स्पेंड हो रहा है, इतना सेव हो रहा है, मतलब इतना ऑब्वियसली वो मतलब 80% होगा ना। देखिए इस ऑब्जेक्ट का 80% 3200 होगा, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। वो वाला यहीं पे आके 20 बन जाएगा डिवाइड बाई 80। राइट आंसर ए बन जाएगा ना। थ्री 787 is divided among A, B, C, D such that A proportional to B, B proportional to C, C proportional D given है, ठीक है। फाइंड ए सी आर पूछा जा रहा है। देखिए आपको ए पी यहीं पे लिखना है, कितना 4 5, देन बी सी 4 5, सी डी 6 7, ठीक है। देखिए देन ए कितना हो जाएगा, टोटल उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 4, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 6, सॉरी 6 नॉट 16, 6 इक्वल टू 96, मतलब ए बन गया 96। देन यहीं पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6 120। देन डी कितना हो जाएगा, देखिए ए बी बी सी सी डी, सॉरी सी 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 इस तरह मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 150 हो जाएगा, ठीक है। देन यहीं पे डी कितना हो जाएगा, इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ऑलवेज इस तरह आप करोगे, ठीक है। 7 कितना को 175, ठीक है। देखिए ए का शेयर पूछा जा रहा है, यहीं पे आप कट कर सकते हो, कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अदरवाइज आप यहीं पे ऐड कर लीजिए 96 प्लस 120 प्लस 150, काटना ज़रूरी था। 541 हो रहा है उनका सम, बट ओरिजिनली कितना है 3787, 3787 841 कितना। देन ए कितना हो जाएगा, वो 96 नहीं होगा, 3787 541, ठीक है। 3787 541 इंटू 96 672 672 राइट आंसर, ठीक है। Sum of money become 3 times in 8 years at simple interest. In how many years will it become 4 times? देखिए sum of money become 3 times in 8 years at simple interest. How many years will become 4 times? मतलब 1 से 3 हो रहा है, ठीक है, 8 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में। हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 4 टाइम। देखिए यहीं पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, मतलब 1 से 3 हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट 2 मिल रहा है। देखिए आपको प्रिंसिपल लेट फी, ठीक है, प्रिंसिपल इनटू रेट का प्लेस रेट इनटू टाइम 8 ईयर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना मिलेगा, मतलब ये प्रिंसिपल का प्लेस में 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। आप 1 ही लेते ना, मतलब यहीं पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहीं पे रेट का वैल्यू अपन निकाल पाओगे ना। देखिए कितना हो जाएगा, यहीं पे 200 आर इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, आर इक्वल टू 25% आएगा कि नहीं आएगा। देखिए देन अभी रेट आपको मिल गया, देन
हाउ मेनी ईयर विल बिकम 4 टाइम, मतलब 1 से 4 होगा, मतलब आपको इंटरेस्ट आपको 3 मिलने वाला अभी। देखिए मतलब प्रिंसिपल 1, रेट आपको मिल गया 25, टाइम आपको पूछा जा रहा है इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 100। देन यहीं पे 1 इंटू टी इक्वल टू यहीं पे 4 इंटू 3 12 आ जाएगा ना। समझा, इजी है। 30 क्वेश्चन। The volume of solid cylinder is 34650 centimeter cube. If height is 25 centimeter, find circumference of base. देखिए वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इज, ठीक है। आपको वो गिवन कितना है 34650, ठीक है। इफ हाइट 25, हाइट आपको 25 गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, फाइंड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। आपको पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है। यहीं पे आर का वैल्यू मिल जाएगा ना आपको 34650। आर ए पे कितना आ जाएगा, मैंने कैलकुलेशन किया, यहीं पे आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आपका सिलेंडर का बेस सर्किल की तरह होता है ना, उनका सर्कमफ्रेंस पूछा जा रहा है, मतलब उनका 2 पाई आर कर लीजिए, 2 पाई आर होगा ना, 2 इंटू 22/7 इक्वल टू आर इक्वल टू 21, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, 130, राइट आंसर ए बन जाएगा। A, B, C can complete a work 2, 8 and 8 day respectively working together. How many day will they take complete 3 time the work? देखिए यहीं पे लेट टोटल वर्क 8 मान लीजिए, ठीक है। ए बी सी कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 2, 8 डे, मतलब ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा 1, सी का कितना हो जाएगा 1 एफिशिएंसी एक दिन में हो जाएगा। देखिए वर्क टुगेदर मतलब वो अभी मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी डे दे टेक कंप्लीट 3 टाइम दी वर्क, मतलब अभी 3 मतलब 24 वर्क करने के लिए कितना दिन लगेगा, यहीं पे 4, 1, 1 मतलब 6 टोटल वर्क 6 24/6 मतलब कितना 4 हो जाएगा ना, राइट आंसर भी हो जाएगा। साक्षी गो टू ए मॉल एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। देखिए जब आपका 2 स्पीड आपको मिलता है, आप क्या करोगे 2 इंटू 36 इंटू 24 डिवाइड बाई 36 प्लस 24 करोगे, ठीक है। देखिए इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, 2 इंटू 36 इंटू 24 डिवाइड बाई 36 प्लस 24 कितना मिल जाएगा 28.8, राइट आंसर सी मिल जाएगा। A metal sphere of radius 36 cm is immersed in a cylindrical vessel partially filled with water. The vessel has a diameter of 4.8 meter. Find rise water level. देखिए यहीं पे आप वॉल्यूम ऑफ स्पीयर पहले निकाल दीजिए, कितना होगा 4/3 पाई, यहीं पे 36 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.36 हो जाएगा ना, 0.36 क्यों होता है ना, और 3 पाई आर क्यों होता है ना। देखिए सिलेंड्रिकल रेडियस कितना हो जाएगा, यहीं पे 4.8 डाया गिवन है, रेडियस कितना हो जाएगा 4.8/2 हो जाएगा ना, और 2.4 मीटर बन जाएगा ना। देखिए राइज ऑफ वाटर लेवल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब वो वाला पार्ट, ठीक है। 4/3 पाई 0.36 क्यू डिवाइड बाई आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई 2.4 स्क्वायर, बस इसी का आप सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत है शायद, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया इतना नहीं आ रहा है। The number are ratio 7 proportional to 28. Their sum is 4830. Then find middle number. देखिए उनका जो सम कितना आ रहा है
27 प्लस 8, 27 प्लस 8 कितना 35 मतलब वो रेशियो फॉर्मेट में सम 35, ओरिजिनली सम कितना है 4830 है ना, इसे कितना टाइम ज़्यादा होगा 4830 डिवाइड बाई 35.38 टाइम। ठीक है, देन फाइंड मिडिल नंबर पूछा जा रहा है, मिडिल नंबर कौन है 20, और 20 नहीं होगा, 20 से 138 टाइम ज़्यादा होगा, कर लीजिए 20 इंटू 138 2760 राइट आंसर ए बन जाएगा। क्वेश्चन, A cricketer has an average of 55 runs in 5 innings. He scored 166 runs in 6th innings. By how much does his average increase? देखिए एवरेज स्कोर 55 रन इन 5 इनिंग्स, 5 इनिंग्स पर आपका टोटल रन कितना हो जाएगा 5 इंटू 55 कर लीजिए, 5 इंटू 55 275 रन हुआ है। देखिए देन ही स्कोर 166 इन 6th इनिंग्स, 6th इनिंग्स में कितना रन हो गया 166, टोटल रन कितना अभी हो गया 166, 441 रन अभी हो गया। ठीक है, कितना इनिंग्स में 6 इनिंग्स में, देन उनका एवरेज कितना आ रहा है आ रहा है 147/2, नहीं काट रहा है। देखिए इसी को आप पॉइंट में लिख लीजिए, कितना 73 होगा, 73.5 होगा। ठीक है, देखिए 55 एवरेज था ना पहले, अभी हो गया इतना, इंक्रीज कितना हो गया 55 माइनस को 18.5 आ रहा है, अरे 18.5 मतलब 19 वो ले लिया है। कीपर brought 20 kg apply for 3600 and sold them at 220 for kg, find profit percentage। देखिए 20 kg इतना में खरीदा, ठीक है 1 kg कितना होगा 3600 डिवाइड बाई 20 होगा ना, इतना होगा ना 1 kg के लिए। देखिए 1 kg को वो बेच रहा है कितना 220 में, फाइंड प्रॉफिट, मतलब देखिए वो वाला ज़रूरी नहीं होगा। देखिए 20 kg को वो बेच रहा है कितना 2, आप ऑलवेज क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, ऑप्शन भी चेक करना है, बहुत क्वेश्चन ऑप्शन से भी आपको मिल जाता है। ठीक है 220 इंटू 20 400, ठीक है इतना में ख़रीदा, इतना में वो बेचा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए वो ईजी है ना, 50%, 80%, हाफ ऑफ ए नंबर इज 442, मतलब नंबर एक्स मान लीजिए, उनका 50% निकाल दीजिए, 80% हाफ इक्वल टू 442, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 442 डिवाइड बाई 100 इंटू 2210 आ रहा है, 2210, ठीक है 38 क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, दी कार स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन एट स्पीड 55 km/h and 72 km/h, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
देम आफ्टर 3 आवर। देखिए मतलब यहीं पे एक कार है, ठीक है, 2 कार स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन एट स्पीड। यहीं पे एक कार है, मतलब दोनों कार यहीं पे खड़ा है, यहीं पे वो गया इस साइड, वो गया इस साइड, ठीक है। देन 55 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड, उनका 72 किलोमीटर पर आवर बी का स्पीड मान लीजिए वो वाला का। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर। 3 आवर में कितना जाएगा, देखिए आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, आपको स्पीड पता है ना, मतलब 1 आवर में वो वाला ज़रूरी नहीं है। देखिए 1 आवर में 55 किलोमीटर, 3 आवर में कितना जाएगा, 55 इंटू 3 कितना जाएगा, 165 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। देन वो 72 मतलब वो 3 आवर में कितना डिस्टेंस जाएगा, 210 जाएगा, 216 जाएगा, ठीक है। उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, 51 आ जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। 8 years ago the mother age was 5 times her daughter age. After 2 years it will 3 times. Find present age ratio. देखिए 8 years ago mother age was 5 times her daughter age. लेट मदर का एज सॉरी डॉटर का एज एक्स मान लीजिए, ठीक है। मदर का एज 5x बन जाएगा ना, वही तो बोला जा रहा है ना, 5 टाइम डॉटर एज आफ्टर वो मतलब वो 8 ईयर के मतलब एगो, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर इट विल 3 टाइम। अच्छा डॉटर होगा एक्स तो मदर हो जाएगा 2x। फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, ठीक है। कि आप इस मतलब इसी मेथड से आप इसी को मत करिए। देखिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वहीं पे नहीं होगा तो आप देखिए मैथ आप 2-3 मेथड से हो पाएगा, आपका इजी मेथड से आप करिए, आसान होगा, ठीक है। देखिए डॉटर यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे मदर लिख लीजिए, ठीक है। देन क्या करना है, डॉटर एज से 5 टाइम मतलब वो 1 होगा तो 5 बनेगा ना। एंड आफ्टर 2 ईयर मतलब ओरिजिनली वो इतना है, वो 8 ईयर पहले के बाद। देन 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर 3 टाइम फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब वो 1 होगा वो 3 होगा 3 के बाद, ठीक है। इसी को अब इक्वल कर लीजिए। पहले यहीं पे डिफरेंस कितना आपको शो हो रहा है, और दूसरा कलर से कर रहा हूँ। देखिए यहीं पे डिफरेंस आपको 2 शो हो रहा है ना, यहाँ पे 4 शो हो रहा है ना। देखिए वो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, ठीक है। 2 वो 4 वो दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मदर एंड डॉटर का अभी मिल जाएगा कितना, यहीं पे 10, यहाँ पे 4, देन 12, देन 4। देखिए मैंने वो वाला क्या हो गया 4, यहीं पे 2, यहीं पे 2 होगा ना, 2 इंटू 1 2 होगा ना। देखिए मैंने वो वाला क्यों किया, देखिए अभी वो डिफरेंस सेम हो गया ना, यहीं पे भी 2 डिफरेंस है, यहीं पे भी 2 डिफरेंस है, यहीं पे बट और इस टाइम डिफरेंस सेम नहीं थे, ठीक है, इसलिए मैंने किया है। देखिए अभी क्या करना है, अभी करना है यहीं पे डिफरेंस कितना है 2 सो रहा है, बट यहीं पे 2 सो रहा है ना, बट ओरिजिनली गिवन कितना है 8 ईयर, यहीं पे 2 ईयर, मतलब इससे 8 ईयर इससे 2 ईयर, मतलब टोटल 10 ईयर, 2 ईयर नहीं है 10 ईयर, मतलब कितना टाइम 5 टाइम ज़्यादा है ना। देखिए पूछा क्या फाइंड देयर प्रेजेंट एज रेशियो, मतलब अभी वो कितना हो जाएगा, वो भी 5 टाइम होगा, वो भी 5 टाइम होगा, वो वाला कर लेते हैं तो अच्छा होगा। वो 5 टाइम होगा, वो भी 5 टाइम होगा, मतलब वो 60 बन जाएगा, वो बन जाएगा 20, ठीक है। मतलब वो 58 हो जाए, मतलब वो भी उनका वाला एज, ठीक है। 2 ईयर मतलब प्रेजेंट एज फाइंड आउट क्या करोगे, इसमें 2 माइनस कर लीजिए, मतलब वो 58 हो जाएगा, वो 18 बन जाएगा, ठीक है। देन इसी कट कर लीजिए 2 9 29 9 का रेशियो, राइट आंसर ए बन जाएगा। देखिए 41 आप खुद सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो ईजी है ना। 42 वो भी ईजी है, सिर्फ आपका और फाइंड वैल्यू ऑफ के स्क्वायर पूछा जा रहा है ना। देखिए आपको यहीं पे सिर्फ के ही हिडन होगा ना। देखिए यहीं पे क्या फार्मूला अप्लाई करना है,
आपको पता है ना एक्स प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x y z होता है। ठीक है, आप x इक्वल टू 2a मान लीजिए। ठीक है, यहीं पे लीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 2a, y इक्वल टू p मान लीजिए, z इक्वल टू c मान लीजिए। ठीक है, देन क्या करना है आपको, पुट करना है सिर्फ वो वाला में 2a स्क्वायर प्लस 2a क्यू होगा ना, बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया। देन यहीं पे क्या होगा, अरे यार 3 इंटू 2a बी इंटू सी। ठीक है, देन इसी को आप सोल्यूशन कर लीजिए। 8a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू यहाँ पे 6a बी सी। देखिए आपको के स्क्वायर वैल्यू पूछा जा रहा है ना, मतलब वहीं पे ओ बी सी इसे लेके आ जाओ। बच गया क्या, 6 बचा ना, के का वैल्यू 6 बचा ना, मतलब 6 है, मतलब वो भी 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा ना। राइट आंसर सी बन जाएगा। 43 क्वेश्चन। In triangle ABC, BD perpendicular to AC at D and DBC 72 degree. E is point on BC such that CAE equal to 71. What is measure of AEB? देखिए ए बी सी। ठीक है, देखिए बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, डी बी सी वो एंगल कितना है 72। ई इज पॉइंट ऑन बी सी। देखिए बी सी में ई एक पॉइंट है, सो दैट सी ए ई वो वाला सी ए ई वो गिवन कितना है 71। ठीक है, देखिए ओ कितना हो गया, ओ 90 है ना, मतलब ओ वाला कितना हो गया, मतलब वो 90 72 180 में से दोनों माइनस कर लीजिए। 180 माइनस, देखिए मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, माइनस 90 प्लस 72 18 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ओ वाला आ गया 18। ठीक है, देखिए ओ वाला 18, ओ वाला 71, ओ वाला कितना मिल जाएगा, कर लीजिए इस तरह 71 प्लस 18 कितना हो गया 89 हो गया, मतलब 91 बन जाएगा ना, वो वाला 91 बन जाएगा। देखिए वो वाला टोटल 180 डिग्री होता है ना, एक 91 बन गया, दूसरा कितना बन जाएगा 180 माइनस 91 कर लीजिए 89 बन जाएगा ना। राइट आंसर ये बन जाएगा। 44 क्वेश्चन। देखिए कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 20% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी वॉशिंग मशीन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग में 20% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी। लेट टीवी 100, वॉशिंग मशीन 20 हो जाएगा ना। वॉशिंग मशीन इंक्रीज 45%, वॉशिंग मशीन 20 था, मतलब 20 का 145 निकाल दीजिए, 145 निकाल दीजिए। देन यहीं पे वो लिख लीजिए। देन टीवी डिक्रीज 38, टीवी कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा ना। देखिए देन यहीं पे देन टोटल कॉस्ट ऑफ 5 वॉशिंग मशीन 4 टीवी। देखिए 5 वॉशिंग मशीन इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए,
पे 40 भी, इसमें 40 भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देन ओ वाला ओल्ड वाला का वैल्यू लेट ओ आ गया, लेट दोनों का जो सम, ठीक है, लेट वो आ गया 100, लेट मैं बता रहा हूँ, वो वाला आ गया 120, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 20, मतलब ओल्ड वाला ऑलवेज नीचे रखिए, देन परसेंटेज निकल 20% लॉस हो रहा है, ठीक है, इस तरह। देखिए आपको log 10 इंटू 10 है, ठीक है, आप 1 लिखोगे, वो चीज़ आप याद रख देना चाहिए, ठीक है आपको। देखिए देन देखिए यहीं पे ऑप्शन में कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए यहीं पे आंसर वो टाइप मतलब जो टाइप किया है वो इसको छोड़ दिया है। देखिए यहीं पे कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 110 स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब 10 इंटू 10, यहीं पे वो बन गया 1, उनका स्क्वायर मतलब 2 बन जाएगा ना, देन यहीं पे 1 बन जाएगा ना, इंटू है ना, देन इंटू वो कितना बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा ना, इक्वल टू कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा ना, क्योंकि यहीं पे प्लस होगा तो 3 बनेगा। देखिए यहीं पे 10 इक्वल टू 0 आपने क्यों लिया, देखिए आपको यहीं पे क्या है 10 कौन सा पावर 1 होगा, वही फंडा है, समझा, वही होता है ना, तो इसलिए 10 log 10 1 इक्वल टू 0 लिखोगे, ठीक है, इस तरह। 7 men और 6 women can do a job in 15 days. 7 men work for 8 days and leave. How many women were required to complete remaining work in 6 days? देखिए एक मैन का एफिशिएंसी m मान लीजिए, ठीक है, 7m का एफिशिएंसी 7m वो 7m होगा, एंड 6 वुमेन कैन डू ए जॉब 15 डे प्लस 6 वुमेन वो किसी काम को 15 डे में कर रही है, ठीक है। 7 men वर्क 8 डे एंड लीव, अच्छा, हाउ मैनी वुमेन रिक्वायर टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 6 डे। देखिए यहीं पे और लिखा गया है, ठीक है, यहीं पे प्रोसेस गलत है, फिर से कर रहा हूँ। देखिए 7 मेन, लेट एक मैन का एफिशिएंसी ऑफ m मान लीजिए, 7m का 7m वो 15 डे में ख़त्म करेगा, मतलब 15 इंटू 7 कितना होगा 105, टोटल वर्क 105 m हो सकता है, अदरवाइज 6 मैन कैन डू ए जॉब 15 डे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 कर लीजिए, 6 इंटू 15 कर लीजिए, 90 m टोटल वर्क हो सकता है। देखिए यहीं पे आप एम एंड डब्ल्यू का एफिशिएंसी निकल पाओगे ना, पाओगे कि नहीं पाओगे, मतलब वार्क का वैल्यू 7 मेन और 6 वुमेन कैन डू 15 डे, ठीक है, मतलब उनका जो वार्क टोटल है वो तो इतना ही आएगा ना, तो दोनों इक्वल ही हो गए ना। यहीं पे आप एम एंड डब्ल्यू का एफिशिएंसी निकल पाओगे, 105 कितना होगा, इसी को कट कर लीजिए, 7/6 आएगा, ठीक है। देन 7 मेन वर्क 8 डे एंड लीव, अच्छा, एक मैन का एफिशिएंसी कितना है 7 मैन मतलब 7 इंटू 7 49। देखिए आप वो का वैल्यू आप फाइंड आउट यहीं पे पुट कर लीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब टोटल वर्क देखिए इंटू 8 यहीं पे डिवाइड कर लीजिए, 49 इंटू 8 कितना 392 वर्क अभी ख़त्म हो गया, अभी यहीं पे पुट कर लीजिए एम का वैल्यू, अदरवाइज यहीं पे पुट कर लीजिए, सेम ही आएगा 90 इंटू वुमेन का 6 पुट कर लीजिए, 540 टोटल वर्क 540, ठीक है, यहीं पे पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाए। देखिए 105 इंटू 7, अच्छा क्या हो गया, मैं गलत लिख लीजिए, 6 7
ठीक है, 6 7 होगा ना, मैंने गलत लिख दिया। देखिए अभी 105 इंटू 6 कितना 630 होगा। इसे कैंसिल कर लीजिए, फिर से कर रहा हूँ वहीं पे। देखिए 105 इंटू 6, एम ए पे 6 आया ना, मतलब 630 टोटल वर्क होगा। ठीक है, इसी को यहीं पे भी 90 इंटू 7 630 आएगा। ठीक है, मतलब टोटल वर्क इतना। देखिए अभी 7 मैन वर्क 8 डे एंड लीव 7 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी 6, देन 7 मैन का 7 इंटू 6 इंटू कितना डे 8 डे, टोटल 336 वर्क करेंगे। माइनस कर लीजिए, 630 माइनस 336 कितना 294 अभी वर्क होगा बचेगा। देन हाउ मैनी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 6 डे में, मतलब वुमेन। देखिए यहीं पे कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 6 डे, हाउ मैनी वुमेन, आपको वुमेन पूछा जा रहा है, कितना वुमेन होंगे। एक वुमेन का एफिशिएंसी 7। ठीक है, कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 6 डे इक्वल टू 294 होगा। 294 इसी को कर लीजिए, 294 डिवाइड बाई 7, राइट आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये मोड ऑफ डाटा 12 9 वो गिव दिया है कुछ, देन इज 12, मतलब आपको मोड 12 गिवन है। मतलब मोड कौन सा होता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है वो मोड होता है ना। देखिए अभी यहीं पे 12 कितना टाइम है, 1 2 2 टाइम है ना, मतलब यहीं पे 13, वो भी 12 टाइम 2 टाइम है, मतलब उनका वैल्यू जरूर 12 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखिए आप के का वैल्यू 7 लीजिए इक्वल टू 12, मतलब 2k इक्वल टू 14, के इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर इज 25, वन नंबर इज 9 मोर देन अदर, फाइंड नंबर। देखिए सम ऑफ टू नंबर इज 25 बोला जा रहा है, मतलब x प्लस वाई मान लीजिए नंबर, उनका सम 25, वन नंबर इज 9, अच्छा मोर देन अदर, मतलब x, देखिए मतलब वो एक x होगा, y कितना हो जाएगा x प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल टू 25। ठीक है, फाइंड नंबर पूछा जा रहा है, मतलब 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा 20, देखिए यहाँ पे 5 मतलब 16 हो जाएगा ना, x इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इक्वल टू 8 बन जाएगा ना। देखिए एक 8 बन गया, दूसरा कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा ना, देन 25 होगा ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। ड्यूरिंग ए न्यू ईयर सेल कंपनी ऑफर बाय 9 स्वेटर एंड गेट 3 फ्री, व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड। देखिए लेट 1 का प्राइस 10 मान लीजिए, मतलब टोटल कितना 9, यहीं पे 3 12 का प्राइस कितना हो जाएगा 120 बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इसमें बाय 9 गेट 3 फ्री, मतलब 30 आप फ्री में मिलता है ना आपको, उनका परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए। ट्वेंटी 25% बी हो जाएगा 25%। देखिए 51। देखिए हाउ मैनी ओड डिजिट आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग ओड डिजिट, प्रीसाइडिंग पीछे इवन इमीडिएट फॉलो है ओड डिजिट, इस तरह आपको सीक्वेंस यहीं पे फाइंड आउट करना है, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या है 52। 5 person A B C D E sitting in a row facing north. A fourth right end. Only one person sit between B and D. D is not immediate neighbor of A. How many persons sit between A and D? देखिए 5 person 1 2 3 4 5 हो गया. देन A फोर्थ फ्रॉम राइट एंड से फॉर ए यहीं पे बैठ रहा है. ठीक है. ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी. अच्छा, बी एंड डी का बीच में वन पर्सन यहीं पे कर लीजिए. देन डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, मतलब डी यहीं पे हो सकता है, यहीं पे हो सकता है. ठीक है, आपका डी यहीं पे लिख लीजिए. ठीक है. देन यहीं पे बी लिख लीजिए. देन उनका बीच में वन पर्सन बैठेगा ना. हो गया सीक्वेंस. डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, वो भी फॉलो हो गया. हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन ए एंड डी. ए एंड डी का बीच में 2 पर्सन है ना. राइट आंसर 2. 52. देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है. ठीक है, दोनों सीक्वेंस में एक सीक्वेंस चेक करना है, इसमें पुट करना है. ठीक है, मिल जाएगा आंसर. 54 क्वेश्चन क्या है देखिए. राजेश स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 54 ईस्ट. 54 ईस्ट गया है. देन टर्न राइट एंड ड्राइव 56. देन टर्न राइट एंड ड्राइव 56 किलोमीटर. देन टर्न राइट एंड ड्राइव 65. देन राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर पॉइंट फी. अच्छा, हो गया. देखिए यहीं पे 54 गया था, यहीं पे 56, 2 किलोमीटर ज़्यादा आ गया. यहीं पे फिर आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना. मतलब 56 नीचे आ गया, ऊपर गया 75. मतलब ऊपर कितना गया है 9 किलोमीटर. सिर्फ 9 किलोमीटर टू नीचे आना पड़ेगा ना. 9 किलोमीटर साउथ जाना पड़ेगा ना. राइट आंसर सी बन जाएगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. वो इजिए. थर्ड डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज एडेड टू सेकंड डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. मतलब देखिए इसमें लार्जेस्ट नंबर का, देखिए लार्जेस्ट कौन है 504 है ना. देखिए लार्जेस्ट नंबर एडेड टू सेकंड डिजिट इन ए स्मॉलेस्ट, थर्ड डिजिट इन ए लार्जेस्ट नंबर का थर्ड डिजिट 4 है. 4 में आप सेकंड, व्हाट इज द रिजल्टेंट सेकंड डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर. सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 273. मतलब स्मॉलेस्ट नंबर का सेकंड डिजिट 7 ऐड करोगे कितना 11 आएगा ना. राइट आंसर बी बन जाएगा ना. इजी है. देखिए हाउ मेनी ओड डिजिट आर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग इवन डिजिट फॉलो बाई ओड डिजिट. हाउ मेनी ओड डिजिट आर देयर इन व्हिच, ओड डिजिट लिख लीजिए. व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे एक ओड डिजिट. हाउ मेनी ओड डिजिट प्रीसाइडिंग ओड डिजिट, ओड एंड फॉलो बाई ए ओड डिजिट. इस तरह आपको सीक्वेंस इसमें फाइंड आउट करना है, मिल जाएगा आंसर. 57 क्वेश्चन. रीड द स्टेटमेंट कंक्लूजन केयरफुली एंड गिव स्टेटमेंट. देखिए नो पाइनीज आर गोइटर. अच्छा, कोई भी पाइनीज गोइटर नहीं है, उनका बीच में बाउंडेशन. नो ऑल गोइटर आर वायोलिन. ऑल गोइटर आर वायोलिन. सम वायोलिन आर ड्रम. सम वायोलिन आर drums. Some pioneers are violins. Some as violin. देखिए यहीं पे तो नहीं हो रहा है ना, तो रॉन्ग हो गया. Some goiter are drums. Some goiter are drum. यहीं पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, बहुत रॉन्ग हो गया ना. बहुत ऑप्शन ये हो गया. 58. देखिए गीता रैंक फिर 16th फ्रॉम टॉप, 26th फ्रॉम बॉटम इन क्लास. हाँ मैंने देखिए टोटल ऐड कर लीजिए, -1 कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको ना. 59. ऑल टीचर आर प्रोफेशनल. ऑल टीचर आर प्रोफेशनल. ऑल प्रोफेशनल आर डॉक्टर. ऑल प्रोफेशनल और
डॉक्टर, सम डॉक्टर आर टीचर, कुछ डॉक्टर टीचर होंगे राइट। ऑल टीचर आर डॉक्टर, ऑल टीचर ऑल डॉक्टर राइट, बोथ राइट होगा ना। 60 क्वेश्चन देखिए, इस साइड आप सॉल्यूशन इस साइड करके जाइए, आपका आंसर मिल जाए। के हज का वैल्यू क्या है, वाइफ जी, इस तरह आपको सीक्वेंस बनना है। खुद का ब्लड रिलेशन में पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 61 यहीं पे इस तरह क्वेश्चन मैंने किया ना डिजिट वाला, कर लीजिए। देखिए प्लस का मीन्स माइनस है, जहाँ पर देखिए यहीं पे जो यहीं पे प्लस लिखा है, यहीं पे माइनस हो जाएगा। देन माइनस का मीन्स इनटू, यहीं पे माइनस है, यहीं पे इनटू हो जाए, इस तरह लिखना है। देन पहले डिवाइड का काम, इनटू प्लस माइनस का काम करोगे, मिल जाएगा आंसर। 63 जेड का कोड पूछा जा रहा है। देखिए जेड इसमें है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ई एस टी दोनों कॉमन कोड, 3 कॉमन कोड आउट कर लीजिए। 8 8 7 8 7 8 7 मतलब जेड का कोड यहीं पे निकल दीजिए, हो गया ना। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इस तरह भी वो सेम है, एन का कोड निकलना है, इसमें ही एन है, इसमें एन है, मतलब उनका जो कॉमन कोड पहले निकल दीजिए। बी मतलब 460 यहीं पे 460 आउट हो गया, मतलब एन एम यहीं पे है ना, सॉरी एन यहीं पे है ना, मतलब 9 हो जाएगा ना। व्हाट इज नेक्स्ट कॉम, यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है। 56 यहाँ पे कितना हो रहा है, ग्रो कितना हो रहा है, 60 20 प्लस 20 हो रहा है ना। देखिए यहीं पे भी प्लस 20 हो रहा है, कर लीजिए, यहीं पे प्लस 20 कर लीजिए। 156 राइट आंसर डी बन जाएगा ना। 66 देखिए दोनों सीक्वेंस गिवन है, वो वाला पूछा जा रहा है, कर लीजिए। इसमें इजी है, सिर्फ कोड चेक करना है, इस तरह मैंने बताया। 68 क्वेश्चन ग्रुप, व्हाट इज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट का चेक करिए, ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाएगा। वो वाला सेम 70 क्वेश्चन सेम। फाइंड मिसिंग नंबर इन दी सीरीज, वो वाला डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, देन 8 ऐड हो रहा है ना, देन 6, देन 4, देन 2 ऐड कर लीजिए, मतलब कितना होगा, 72 बन जाएगा ना। वो वाला मैंने किया है 74 75, दोनों का तरह आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा आएगा। वो वाला भी सेम, आपका फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, देखिए ऑप्शन से करिए, ये भी ऑप्शन में सब में एफ है ना, छोड़ दीजिए, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर लीजिए, मिल जाएगा। फाइंड द नंबर इन सीरीज, आपको फाइंड आउट करना है। वो वाला इजी है, 80 क्वेश्चन, आपका प्लस का मीन्स माइनस, माइनस का मीन्स प्लस है, प्लस का माइनस डिवाइड है, इस तरह फाइंड आउट करना है सिर्फ, ठीक है। वो करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए इसी को, थैंक यू।